Yes, children. Yesterday I have introduced about the money and credit this chapter. I hope you have understood the definition of the money that we have introduced. And children, in this chapter we will go through one by one. Children, in this topic, wait a minute. First of all, how can you define the money? So children, you can define it as the medium of exchange. First of all, right? Money is used as a medium of exchange. Without that, earlier in the past we were using the barter system that we have already explained you yesterday, right? So now I am starting how it is, what are the different functions and why it is known as the medium of exchange, right? Children, as we know that money is the most basic and significant invention of the mankind, right? And without money or in the absence of money, it will be very difficult to run an economy, and entire economy of a country could collapse. Okay? So in this way we can able to understand how what is the role of the money and how the money is important in our economic for the economy and for our economic activities, right? Children, money is used as a medium of exchange and that is the most important function of the money, right? ये इसका most important function भी है, fine. जो most important we can say here most important role of the money or the most important function of the money is it is used as a medium of exchange, right? The exchange of after the arrival or after the invention of money, it made very simple, right? It makes whatever we want to purchase, whatever we want to buy goods and things, it is very simple. It has become very simple and convenient with the help of money. We can purchase goods and things very easily with the help of money. We can, it has a specific value that is called as measure of value, right? To purchase goods and things. Yesterday we had talked about the double coincidence of bonds. कैसा जैसे कि बाटर सिस्टम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते थे तो उसके बदले में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी इट मेक्स इजी टू परचेज एनी गुड्स एंड सर्विसेज. सो अवर लाइफ बिकम वेरी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल आफ्टर द अराइवल ऑफ मनी, बिकॉज अब हमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. हम डायरेक्टली मनी दे के कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कोई जॉब की, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बदले में मुझे कोई अगर बोले कि क्लोथ्स ले लो या फिर मुझे बोले कि शूज़ ले लो, तो आई थिंक उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है और मुझे लगता है कि मेरी सर्विसेज बहुत ही वर्दी की, बहुत ही वैल्यूबल थी. तो उसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, राइट? यानी कि जो मैंने सर्विसेज या गुड्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे मिलनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखती हूँ जैसे कि 1 kg शुगर का कॉस्ट जो है 1 kg शुगर इज सेल्ड एट द प्राइस ऑफ ₹50. ठीक है, अगर 50 रुपीज़ का है अगर 1 kg शुगर, देन ऑब्वियसली आई विल पे 50 रुपीज़. मैं उससे ज़्यादा क्यों पे करूँ, या वाई शुड आई पे मोर देन 50 रुपीज़? फाइन. Similarly, if I have to purchase 2 kg, then it will increase, it will be 100 rupees. Fine. For example, if I have to sell this marker at the price of 25 rupees. So simply, if I have money, if I have cash, I can purchase this marker at the price of rupees 25.
और सिमिलरली यू विल सी इन द बार्टर सिस्टम में अगर मुझे कोई बोले कि I think it is 14 students. down is up right? Subsidize. 20 Sorry children, sorry for the interruption. For example, if I have to purchase, I was giving an example, अगर मुझे ये मार्केट खरीदना है, ठीक है, तो मुझे इसकी एक्चुअल मेजर, इसकी एक्चुअल वैल्यू पता है कि ये 25 रुपीज़ का है, तो वाई शुड आई पे मोर देन दैट, मैं उससे ज़्यादा उसको पे नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि मुझे इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो मैं बोलूँगी कि मार्केट ले लो, मुझे कुछ भी दे दो, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं मुझे उससे कम, उसकी वैल्यू से कम मिली, राइट। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर, इट इज़ वेरी इजी टू measure the value of any good or any commodity, fine, in our economy. Then another important function is that it made all the economic activities, जो भी हमारी economic activities होती हैं, जो भी economic activities, for example जितने businessmen हैं, जितनी भी industries हैं, they used to transact the money in their daily activities, in their daily life. राइट, उनको जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी होती है दे कैन सिंपली मेक ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ मनी, अदरवाइज वो बार्टर सिस्टम से कैसे ट्रांजैक्शन या कैसे वो हम कैसे बिजनेस कर सकते थे, ठीक है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल एंड इट मेक्स द प्रोसेस वेरी इजी. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. So money means it is a very basic or significant invention that make our life very simple and convenient, and it is used as a medium of exchange. With the help of money we can simply purchase goods and services without any complications, without any problems. Then second, the measure of value. With the help of money we easily know the actual value of the goods and service, right? For example, I have given, जैसे कि अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करती हूँ तो मुझे अगर उसके बदले में कोई क्लोथ या कोई भी चीज़ कोई गुड्स अगर मुझे एक्सचेंज करता है तो मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू कम लग सकती है, ठीक है। तो मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर मिलती है वो मनी के फॉर्म में तो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, वो कन्वीनियंट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई गुड या कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ की एक्चुअल वैल्यू 50 रुपीज़ है, जो कि मुझे पता है तो मैं उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका एक्चुअल वैल्यू मालूम है. देन द थर्ड इज मनी के हेल्प से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में, वो बहुत ही इजीली ट्रांजैक्शंस की जा सकती है. जो बिजनेस पर्सन है वो अपनी डेली ट्रांजैक्शंस, अपनी पेमेंट्स आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द रोल ऑफ द मनी. नाउ वी विल सी व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ of money. We will go through one by one. First of all, I will starting paper currency. आप सभी को मालूम है. Then second is coins, and we have third, that is demand deposits, right? And then fourth is you can say like checks, right? अब इन सभी के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ही पहले से. I know that. So these are considered as the modern forms of economy. We will go through one by one. First is paper currency. So children, what is the paper currency? And जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मैंने ये मार्कर मुझे खरीदना है, ठीक है, और मैंने इसे खरीद लिया शॉपकीपर से, और उसके बदले में मैंने एक पेपर पे लिख के दे दिया कि ये ठीक है, ये 20 रुपीज़ है, आप 20 रुपीज़ दे दीजिए और मुझे मार्कर दे दीजिए. तो nobody will accept that paper. राइट? क्यों? क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट द बैंक हूँ. तो मैं जब किसी पेपर पे लिख के दे रही हूँ कि 20 रुपीज़ है ये, तो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है. इस मार्कर को खरीदने के बदले मैंने 25 रुपीज़ दिया शॉपकीपर को, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, राइट. सो हु इज़ द अथॉरिटी?
कौन है वो अथॉरिटी जो कि पेपर करेंसीज को बनाता है या ऑथराइज करता है, राइट। सो इसकी एक्चुअली में हम प्रोसेस देखें, जो अर्लियर टाइम में जो कॉइन्स होती थी वो प्रीशियस मेटल से बनती थी, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये प्रीशियस होते थे तो हर कोई इसको लेना चाहता है, ठीक है। बट नाउअडेज वी कैन सी दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ वेरी सिंपल मेटल्स एंड सिंपल पेपर, फाइन। बट व्हाई वी एक्सेप्ट दी सिंपल पेपर और सिंपल मेटल, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, राइट। बट तब भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इन पेपर करेंसी और इस जो कॉइन्स होते हैं मेटल्स की, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। इट हैज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू बाय why we accept this, because intrinsic value होती है and it is authorized by the government of India. It is authorized by the government of India. First of all, government of India कैसे इसको authorize करती है? It is authorized by the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, जो कि उसकी currencies को हम कह सकते हैं कि printing of notes and making of coins is actually processed or done performed by the Reserve Bank of India, ठीक है। प्रिंटिंग जो होती है नोट्स और करेंसीज की जो कॉइन्स बनते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, उनकी डिमांड और सप्लाई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इन दिस वे जो पेपर करेंसीज हैं, जो कॉइन्स हैं, ये नोट्स और करेंसीज एक्चुअली में ऑथराइज की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन of authority which is responsible for the making of currency notes in India, right? Then another important thing, no one refused to accept the currency, ठीक है। अगर हम ये नोट कोई भी इन पेपर करेंसीज को कॉइन्स को लेने से एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑथराइज है, इस पे लिखा हुआ है कि दिस इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर आर सम सिंबल्स, देयर आर सम साइंस, सिग्नेचर्स, अथॉरिटीज जो कि इन करेंसीज को वैलिड करती है, राइट। सो and these notes have specific values, जैसे कि अगर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। सिमिलरली 500 रुपीज़ है तो उसकी भी एक मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे मैंने बताया कि कोई चीज़ मैं अगर परचेज करती हूँ तो मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मालूम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू नहीं पता है तो इट विल स्टार्ट कॉम्प्लिकेशंस, राइट। तो सिमिलरली एक स्पेसिफिक नोट जो है, एक स्पेसिफिक करेंसी की एक वैल्यू होती है जो कि ऑथराइज की गई है by the Reserve Bank of India. Fine. Now we will see what is the role of the Reserve Bank of India. I hope this topic is clear, children. In between you can speak so that I will be able to know कि आप class में present हैं. Now it is clear. Okay. Children, now we will see what is the role of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is responsible for the printing of notes and currencies in India. They actually regulate, ठीक है, they regulate, they control the demand and supply of currencies in India. Fine. Now we will see what are the important functions of India one by one. First of all, you need to understand the RBI was established in India in 1935 under the British government, right? Under the British government. At that time, India was the colonial of the British. There was an act passed in 1934. Sorry, 34. After the First World War. First World War के बाद एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक एक्ट पास किया गया 1934 में टू कंट्रोल और प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई इंडिया में। दिस वाज द डिमांड ऑफ द इंडियन लीडर्स फ्रॉम द ब्रिटिश दैट there should be some financial stability and they can even give the uniform currency, they can regulate the banks, the finance system in India, ठीक है। तो under this act the RBI was established in 1935. I hope this is clear. Now what was their main functions? So this was the
first we can say the RBI provides the financial stability in India after the establishment. This was the first initial financial organization that looks after the entire financial system or monetary system in India. Then they provide, or कह सकते हैं कि they regulate currency system in India. जो इंडिया का करेंसी सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, कितनी डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या सर्कुलेशन में है, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करना आरबीआई के अंडर में है. देन अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज दैट इट इज नोन एज द बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक का मतलब है इट इज द मदर ऑफ द बैंक इन इंडिया, जो कि प्रोवाइड करता है लोन्स बाकी अदर बैंक्स को. इट लेंड्स मनी टू अदर बैंक्स. अगर जितने भी बैंक्स हैं, नेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, अदर बैंक्स इन इंडिया, उनको मनी और करेंसीज प्रोवाइड करने का काम करता है. देन इट इज द कस्टोडियन ऑफ अनदर, इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जो भी फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है, वॉट एवर भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो भी हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो उसके बदले में जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, दैट ऑल्सो रिजर्व और द कस्टडी, दे कीप्स द कस्टडी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन मनी एंड कीप्स द रिकॉर्ड, राइट. देन दे प्रमोट्स द अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट्स द अदर फाइनेंशियल बैंक्स. जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है. जो जैसे कि ऑल अदर बैंक्स हैं, पीएनबी हुआ, आईओबी हुए, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं इंडिया में, वो सभी बैंक्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम करता है. इट ऑल्सो सुपरवाइजेस द अदर बैंक. सुपरवाइजेस मीन्स इट्स रेगुलरली checking the work, the system of the other banks. So in this way the RBI is the centralized bank in India. ये एक centralized bank. Yes, yes, sorry. No, I understand the one after the provide related system. Provides, regulate, it actually regulates the currency system in India. यहाँ पे हम एक ये बना देते हैं, प्रोवाइड्स करेंसी. इंडिया में करेंसी को प्रोवाइड करने का काम करता है. नॉट ओनली इट इज प्रोवाइडिंग, इट ऑल्सो रेगुलेटिंग. रेगुलेटिंग मीन्स कंट्रोलिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करेंसी भी वो नहीं छापते. So they keeps on regulating or controlling this currency system in India, right? Clear है? Okay. No, I understand last. Yes. Promotes, and I have written here the RBI promotes the other financial institutions. Other financial institutions जो है उनको भी प्रमोट करने का और सुपरवाइज करने का काम करता है. ठीक है, सुपरविजन यानी कि जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको सुपरवाइज करता है. उनका जो प्रोसेस होता है, उनकी फंक्शनिंग होती है, उनको रेगुलरली चेक करने का काम जो है वो आरबीआई करती है. ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एंटायर नेशन. सिमिलरली आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक है, इसीलिए ये जितने भी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट और उनकी जो सिस्टम है फंक्शन करने के, उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करते हैं. ठीक है, ये मैंने बताया यहाँ पे. ये वाला जो बताया था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज, जो भी हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, तो जो फॉरेन मनी आती है उसका भी कस्टडी, उसकी भी रिकॉर्ड जो है वो रिजर्व बैंक के पास ही होता है. क्लियर है इतना? फाइन. एंड आरबीआई एवरी ईयर जब हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, टाइम टू टाइम दे डू द रिव्यूज़. जो रिव्यूज़ होते हैं उनके बेसिस पे, और जो भी सर्वेज होते हैं उनके बेसिस पे, दे एक्चुअली कीप्स ऑन चेकिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो हमारा अनदर पॉइंट होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ. उसको भी ये चेक करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द ओवरऑल ईयरली, एनुअली, ठीक है, ईयरली इकोनॉमिकल ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको रेगुलरली ये चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू। what are the functions or role of the Reserve Bank of India, right? Okay. Yes, ma'am. If doubt you can Yes, ask, ma'am. or you can ask in the interactive session also, you can message me individually also, ठीक है, if you have any doubt, right? So we were talking about the modern forms of money. हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हमने currencies और coins के बारे में पढ़ा. Now I am starting the next one. It is the demand deposits. Okay. Children, this is the another form of money in India. जो भी children, जैसे कि हम जो भी हमारे पास सैलरी आती है, जो भी हमारे पास इनकम होती है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट हम डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, ठीक है। हमें डे टू डे लाइफ में ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। So whatever money I have in my account or receive salary or wages in my account, only some part I will withdraw and कुछ पार्ट जो है वो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी, ठीक है, मैं विड्रॉ नहीं करूंगी, ठीक है। सिमिलरली और ये जैसे कि जिनके पास भी अकाउंट है वो जनरली वो यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि दे डू नॉट विड्रॉ ऑल द मनी एट अ टाइम, ठीक है। जितनी उनकी नीड होती है उतना ही विड्रॉ करते हैं और अगेन जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी दे कैन विड्रॉ द मनी अगेन, राइट। सो डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट, deposits in the bank account राइट। सो डिमांड डिपॉजिट मीन्स डिमांड, मेरी डिमांड है, आई रिक्वायर मनी, राइट। एंड डिपॉजिट मीन्स आई हैव एन अकाउंट इन द बैंक, आई हैव डिपॉजिटेड सम पार्ट ऑफ माय सैलरी, ऑफ माय वेजेस, सो व्हेनेवर आई रिक्वायर मनी आई विल विथड्रॉ दैट अमाउंट, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट्स इन द bank accounts can be withdrawn anytime whenever I require money, right? For about जितनी जो भी हमारी requirement है. So that is the main important feature that whenever I need money, whenever I demand money from the bank, they have to give that much amount of money. ठीक है, उनको उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा. तो ये डेली का हम देखते हैं, आप सभी को ये पता है कि जब भी आपको जरूरत होगी आप उतना मनी ही तो आप निकालोगे. ठीक है, आप अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उतना कैश क्यों निकालेंगे. तो वॉट एवर मनी आई हैव डिपॉजिटेड इन माई बैंक अकाउंट एंड व्हेन आई विल गो टू बैंक टू विथड्रॉ दैट मनी, that such type of deposits are known as demand deposits. Fine, clear है इतना. ठीक है, then next form of money is check. ये सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंपल है और आई थिंक आप सबको ये पहले से ही पता है. ठीक है, another form of money is a check. Children, a check is a paper instructing. It is a paper instructing या स्पेसिफिक नेम हम कह सकते हैं. चेक उसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि जब भी हम कोई बैंक में हमारा अकाउंट होता है, ठीक है, तो बैंक हमें एक चेक बुक प्रोवाइड करता है. इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेपर दैट इज इंस्ट्रक्टिंग वन पर्सन दैट आई एम गिविंग यू दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई अकाउंट. ठीक है, मैं अपने अकाउंट से जो पेमेंट है, मनी है, मैं आपको ये ट्रांसफर कर रही हूँ, पे कर रही हूँ. फाइन, स्पेसिफिक अमाउंट जो है अदर पर्सन specific amount is written on that. एक specific amount जो है
वो मैंने उस पर लिख दिया और उतना अमाउंट जो है वो मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र यानी कि मेरे अकाउंट से पे कर देगा बैंक टू दैट पर्सन जिसको टू हुज नेम आई हैव देख लेते हैं इसे चेक इज अनदर फॉर्म ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इट इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑन हुज नेम आई हैव इंस्ट्रक्टेड यानी कि जिसको मैंने जिसके नाम पे मैंने ये अमाउंट देना है उसका नाम मैंने उस पर लिखा और वो अमाउंट लिखा एंड देन आई हैव गिवन दैट पर्सन वो पेपर मैंने उसे दे दिया और इन दिस वे जब वो जाएगा बैंक में दैट अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्सन उसको दे दिया जाएगा ठीक है। ये जनरली एक कैशलेस सिस्टम है ट्रांजैक्शन करने का। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम हमेशा ही कैश का इस्तेमाल नहीं करते ठीक है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए इट इज़ अ वेरी बेस्ट फॉर्म ऑफ पेमेंट इन अवर जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं अपने डेली ट्रांजैक्शंस के लिए वहाँ पे वो कैश का इस्तेमाल नहीं करते और अगर उनके पास कैश नहीं भी है हमारे पास भी अगर नहीं है तो देन ऑल्सो वी कैन यूज दिस method of payment where I can simply write the name of the person and the amount and I give my signatures and this instruction will be given to the bank and that amount will be transferred to that person. Fine. So this method is also a modern form of payment. Generally it is used as जहाँ पे कि हम कैश का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी बिजनेसमैन है या फिर जो भी डेली की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना तो वहाँ पे हम कैश का इस्तेमाल जब नहीं करना चाहते तो वहाँ पे हम चेक का यूज़ कर सकते हैं ठीक है। अगर इफ समवन इज नॉट कैरिंग कैश अगर उसके पास कोई इमरजेंसी भी है उसके पास कैश नहीं है देन ऑल्सो दे कैन यूज दिस मेथड टू पे। आई होप these 2 points are clear. What is demand deposit and what is check? Is it clear? Yeah. Clear है सभी को? Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, children, these 2 topics we have covered. That is the money is the medium of exchange, and then second topic, what is the role of Reserve Bank of India, and what are the different forms of modern currencies. Is that clear, all of you? Clear है सभी को? Yes, ma'am. Can anyone tell me who is the present governor of RBI? Yes. Anyone can tell me the name of? Yes. Please repeat your answer. Who is the present Reserve Bank governor of India? मालूम है आपको? फास्ट आपने अगर न्यूज़ देखा होगा करंट टॉपिक्स में अगर इंटरेस्ट होगा तो आपने शायद सुना होगा आजकल तो बहुत आता है न्यूज़ में। एनीवन? यस चिल्ड्रन, एनीवन एल्स? चिल्ड्रन आरबीआई की जो गवर्नर है ठीक है द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल। यस, राइट आंसर। कैन आई नो योर नेम? Ma'am, Shikha. Okay, very good, Shika. You have given right answer. The present governor of Reserve Bank of India is Shri Shaktikant. ऐसा लग रहा है शक्तिमान लिख दिया है। The Reserve Bank of India is Shaktikant Das. I think यही नाम है ठीक है। And who appoints the governor of the Reserve Bank of India? He or she is appointed by the central government. जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वही अपने म्यूचुअल डिसीजन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करती है ठीक है। तो करेंसीज जो है वो मॉनेटरी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूनियन गवर्नमेंट का। या नेक्स्ट आपने शायद फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा जो यूनियन लिस्ट होती है ना अगर हम सिविक्स से इसको रिलेट करते हैं तो यूनियन लिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है करेंसी। और करेंसी जो जिसका की रेगुलेशन जिसकी की कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई ये सारा जो है वो आरबीआई करती है राइट। इतना
इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes. ओके, ये चिल्ड्रन यू कैन सी हियर चेक पेमेंट। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि चेक कैसा होता है। चेक पेमेंट्स इट इज गिवन, द नेम ऑफ द पर्सन इज रिटन हियर, ठीक है, डेट इज मेंशन, द अमाउंट इज रिटन इन वर्ड्स एज वेल एज इन नंबर्स। Here the account number of a person it has mentioned, right, and the name of the bank and its address of the branch. The number, check number, I think ये आपको थोड़ा सा visible होगा, थोड़ा सा blur है, but तभी भी check number and the coding used by the banks, the signature, right. So in this way a person can give this page or this specific instruction page to this person जिसका कि उसने नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट को पे कर रहा है, देन यू विल मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन एंड वो पर्सन इसको रिप्रेजेंट करेगा बैंक में एंड देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस पेज दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दिस पर्सन, राइट. ओके children, now you can see we after the demonetization policy, after the demonetization policy we are using different methods of transaction for the digital payments. We have credit cards, right, we have so many apps to make payments, right. So here we can see some of the features are given here. We are using check card, visa card, master cards and debit cards for the payment. We have so many apps. We use UPI and different apps for the payment. So that you should know. Now look at here. यहाँ पे कुछ questions दिए हुए, ये check से related था. Now why are demand deposit considered as a money? This question is written here. Children, demand deposits why it is considered as money? Because it is the important form of currency, modern currency. Because whenever you require money, you can simply withdraw the your amount from the bank and it is considered as a money. कि अगर आप ये कहीं पे भी किसी भी बैंक पे जाते हैं तो भी आपको ये तुरंत कैश या मनी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. Next topic we can see, we will start from here, loan activities of bank. So our next topic is loan activities from I hope this topic is clear to you children, all of you. Yes. It is very important because ये सारी चीजें जो है वो basic information है that you will use in your future life, in your coming life, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपने शायद देखा भी होगा, आपके पेरेंट्स यूज करते होंगे ये सारे सिस्टम, ठीक है. तो ये basic information है that you should know, right. Okay, now our next topic is loan activities of bank. It is one of the important mechanism of bank that they provides loan, ठीक है. चिल्ड्रन, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, जो भी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, दे यूज टू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी, सम कैश विद बैंक, वो अपना बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और बैंक उनको उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो भी हमने डिपॉजिट किया है, जो मनी हमने डिपॉजिट की है, उसके बदले में बैंक मुझे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. जैसे कि अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ के बदले में मुझे एनुअली पर ईयर गवर्नमेंट जो मुझे 10% या 12%, हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे कि प्राइवेट बैंक से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट देते हैं. जो गवर्नमेंट बैंक वो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं ईयरली. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 1 लाख रुपीज़ अपना डिपॉजिट करने पे बैंक ने दिया, ठीक है. तो सिमिलरली वॉट एवर अमाउंट आई डिपॉजिट इन द बैंक विल गिव मी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट मुझे देगा, ठीक है. और इवन मेरी जो 1 लाख रुपये है, जो मेरा डिपॉजिट है, वो भी बैंक के पास सिक्योर है, ठीक है. तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा कैश अमाउंट है वो बैंक के पास है और बैंक मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है. तो दो चीज़ों का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, राइट. लेकिन जो मेरा यहाँ पर 1 लाख रुपये है बैंक के पास, वो बैंक उस अमाउंट का करेगा क्या, ठीक है. मैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं उसको विड्रॉ करने जाऊँगी तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो इमीडिएटली मैं विड्रॉ नहीं कर पाऊँगी बिकॉज देयर इज सम
लिमिटेशन. I can withdraw only some amount of money at a point of time. हो सकता है कि मैं 10,000 रुपये ही या 20,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकूँ बैंक से, ठीक है. तो बैंक इस मनी से क्या करता है? एक्चुअली दे यूज दैट मनी टू गिव लोन्स. वो ये मनी को लोन प्रोवाइड करने में, जो लोग आते हैं बैंक में, ठीक है, जो कि नीडी होते हैं, जिनको की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक उस मनी को यूटिलाइज करता है लोन प्रोवाइड करने में. राइट? आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. Yes, ma'am. Bank will use that amount of money to give loans to the needy person. Fine? Isn't it clear enough? As simple as that. Yes, ma'am. ठीक है. जैसे कि अगर आपके पास कभी आपके पास अगर पैसे हैं और आपके फ्रेंड को ज़रूरत है, आप उसको नीड के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप उनको दे देते हो, ठीक है. और हो सकता है कि जैसे आपने उनको 1,000 रुपीज़ दिया और आपने उसको बोला कि मुझे ये मनी जब तुम्हारे पास होगा मुझे रिटर्न करना, ठीक है. तो उसके आपके फ्रेंड ने आपको वो मनी जो है वो रिटर्न तो किया, लेकिन आपने उसको बोला कि ये 1,000 रुपीज़ के बदले में आपको इंटरेस्ट भी तो देना है. 1,000 रुपीज़ उसने आपसे लिए थे, लेकिन आप उसको इंटरेस्ट भी वो पे करेगा, ठीक है. तभी तो आपको बेनिफिट हुआ. या आपका अच्छा फ्रेंड है तो शायद आप इंटरेस्ट ना भी लो, ठीक है. सो यहाँ से मैं कंक्लूड करूँगी चिल्ड्रन लोन एक्टिविटीज से. आई होप जो भी पढ़ाया है वो क्लियर है आपको. और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क योर क्वेश्चंस इन इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. लोन एक्टिविटीज से हम कल स्टार्ट करेंगे. क्लियर? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay children, all of you Okay, ma'am. keep on reading. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Take care of yourself. Thank you. Have a nice Thank you, ma'am.